Hey everyone, welcome back to my channel. I am Ayushi, a nursing student at AIMS. So today we are going to talk about a topic that is really boring, but trust me, it's life changing. That is planning and organization. Imagine waking up knowing what exactly your day looks like. No chaos, no confusion, only a clear direction. Sounds great, right? Okay, so let's start with the basics. Why planning and organization is important. First of all, it reduces anxiety. It helps you to plan your day. It helps you to prioritize the things that truly matters in your life. It also helps you to say no to distractions and work like a pro. Second thing is best tools for planning. Honestly, you don't need fancy systems for planning. It's just the basic things that you have to know. You just need to know what works for you. So what are the things that you can use to plan the things? First is your Google calendars or any type of normal calendars you can use to plan for the long term planning. Secondly, you can use some apps like Notion is very good for planning. Sticky notes, if you are if you're a person that who plan on diary, or so sticky notes would be a good sticky notes is the better choice for you. Alarms and reminders, they are very important. So I'll summarize how to plan. You can use Google calendars for long term planning or any normal calendars. Secondly, you can use different types of apps for planning, for example Notion. Third, you can use different types of reminders and alarms on your phone. Third is what are the types of planning that you should do. Basically, I'm that kind of person जो कि हर चीज़ को plan करता है, whether it is my content, whether it is my study, whether it is my अगर कोई type किसी भी type की कोई भी program आने वाली हो, या फिर कोई fest हो college का, उसके लिए मेरे को participate करना है, या फिर कुछ भी ऐसा event है जो जिसमें मैं interested हूँ, उसके लिए भी मैं plan करती हूँ. And I'll also plan my different types of things, जैसे कि अगर मेरे को जैसे if I am in a committee, अगर मैं किसी committee में हूँ कॉलेज में, तो उसकी चीज़ें भी मुझे प्लान करनी होती है कि हाँ ये सारी लिस्ट मुझे देनी है टीचर्स को, या फिर मैं ये भी प्लान करती हूँ कि मतलब मुझे जैसे अगर मैं क्लिनिकल्स में कुछ सीख रही हूँ, दोज हू डोंट नो मी, आई एम अ नर्सिंग स्टूडेंट. सो अगर मैं कुछ ऐसा क्लिनिकल्स में मुझे कुछ करना है या मुझे किसी पर्टिकुलर वार्ड में ये चीज़ सीखनी है, तो मैं ये चीज़ भी प्लान करती हूँ. तो प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग दैट यू कैन डू. First of all is long term planning. What is long term planning? It is basically your projects, like your bigger projects जो कि आप जिस पे आप काम करना चाहते हो. Long term planning is basically एक दिन में नहीं हो जाती. हम long term plan करते हैं. जैसे for example, if I have to buy a dress, so it is my project, या it is my long term planning कि मुझे उसके लिए save करना है. So that is a long term planning. If you have to crack any exam, तो it is your long term planning कि मुझे वो एग्जाम क्रैक करना है. If you have to do internship in a particular company, then it is also a long term planning. अगर कोई जॉब चाहिए, आपकी कोई ड्रीम जॉब है, अगर आप वो पाना चाहते हो, या फिर आप अगर कोई कार खरीदना चाहते हो, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसके लिए आप छोटी छोटी प्लानिंग करके. सेकंड इज मंथली प्लानिंग. मंथली प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर आपका जो भी लॉन्ग टर्म गोल है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उस पर काम करने के लिए आपको मंथली जो है वो प्लान करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, एक बच्चा है जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो नीट की प्रिपरेशन करते वक्त उसको मंथली क्या प्लान करना चाहिए, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका लॉन्ग टर्म गोल है एक एग्जाम को क्रैक करना, तो वो क्या करेगा अपनी मंथली प्लानिंग में, वो ऐसी ऐसी चीजें लिखेगा कि इसको कौन कौन से चैप्टर्स इस महीने में. लॉन्ग टर्म प्लान एंड वो काफी हद तक आपकी शॉर्ट टर्म प्लान को भी अफेक्ट करता है. एज वेल एज ऐसा नहीं है कि अगर कोई दो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सेम लॉन्ग टर्म गोल है, तो उनका शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है काइनेमेटिक्स पहले कर रहा हो किसी मंथ में, और कोई बच्चा कोई और चैप्टर पहले कर रहा हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. Totally depends on weekly planning. Weekly planning is also important. It's basically a breakdown of your monthly planning. कि आपने जो बड़ी सी monthly planning करी है, it is the long term goal with respect to your weekly planning. कि आप जो weekly planning करो, अपने long term monthly planning को achieve, monthly goals को achieve करने के लिए करो. जो आप monthly planning कर रहे हो, वो आप अपने long term goals को achieve करने के लिए. हायरार्की बन रही है. तो अगर मैं बात करूँ weekly planning की, तो what is the purpose of weekly planning? अगेन आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हो अपनी प्लानिंग को, कि आपने मंथली प्लानिंग कर ली, अब आपको ये पता है कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो अब आप वीकली प्लानिंग में क्या करोगे, एक चैप्टर उठाओगे उनमें से कि हाँ मुझे ये एक चैप्टर इस वीक में खत्म करना है. दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, दैट इज इन रिलेशन टू द स्टूडेंट. एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए क्या है, वीकली प्लानिंग क्या है कि इस वीक मेरी ये क्लासेस है, मुझे ये थ्योरी पढ़नी है. या फिर अगर आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, डांस में इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे ये सॉन्ग्स प्रिपेयर करने हैं, या फिर मुझे ये कंटेंट बनाना है. इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, तो दैट इज योर वीकली प्लान. डेली प्लानिंग. तो डेली प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट to complete. Daily planning is important to basically
कंप्लीट योर वीकली प्लानिंग। तो जो आपने वीकली प्लानिंग करी है उसको कंप्लीट करने के लिए डेली प्लानिंग के डेली टू डू लिस्ट बना लिया कि आज मुझे ये करना है, इस चैप्टर के मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, तो ये हो जाएगा वीकली। अगर मेरे हिसाब से बात करें एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस वीक ये वीडियो बनानी है, तो इस वीडियो का इतनी वीडियोस बनानी है, 5 वीडियो बनानी है मुझे एक वीक में, तो मुझे ये वीडियो इस दिन बनानी है, ये शॉर्ट इस दिन एडिट करना है। वैसे यूजुअली आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, बट मैं यूजुअली रोज वीडियोस ऑब्वियसली नहीं शूट करती, क्योंकि मेरे पास भी कॉलेज का काम होता है, तो ऑब्वियसली मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा प्लान करके चलनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू माई प्लानिंग मुझे वीकेंड्स पे शूट करना पसंद है। सैटरडेज को और संडे को मैं हाफ में शूट कर लेती हूँ कि 3 वीडियोस मैं सैटरडे को शूट कर लिए, संडे को 3 वीडियो शूट कर लिए। इससे क्या होता है, मेरा टाइम बचता है, बिकॉज सैटरडेज और संडे को क्या होता है, सैटरडे को हाफ डे होता है एम्स में, तो सैटरडे को हाफ डे होता है। इससे क्या होता है कि हम इजिली अपना जो टाइम है, जो हम कॉलेज जाने का टाइम है, वो बचा लेते हैं, उससे हम इजिली यहाँ पर आके मतलब वीडियो शूट कर सकती हूँ मैं, और संडे को भी शूट कर सकती हूँ, बिकॉज संडे को तो हमें आराम करने का ही टाइम मिलता है। तो उसको भी यूज करके थोड़ा टाइम को यूटिलाइज करके हम कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं। इफ यू आर इन कॉलेज देन डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग irrelevant stuffs, whether you can create your own content or learn a new skill. There are many skills to learn. Coding सीख सकते हो. If you're a nursing student, then I am suggesting you that please learn coding also. It is important for you. Coding learn कर सकते हैं. Different types of things are there in life to learn. Basically अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमें मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, बिकॉज एआई आजकल ह्यूमंस की जगह ले रहे हैं, तो एक जॉब से तो काम नहीं चलने वाला है। आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, एडिटिंग आनी चाहिए, थंबनेल मेकिंग आनी चाहिए। दीज आर द बेसिक स्किल्स दैट यू हैव टू लर्न। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी इररिलेवेंट स्टफ्स कर रहे हो। इररिलेवेंट करने का कोई मतलब नहीं। इफ यू आर इन अ कॉलेज देन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू, दैट इज लर्न न्यू स्किल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो अभी भी मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करी थी। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टाइम मैनेजमेंट एंड टेक्निक। इफ यू आर इन अ कॉलेज स्टूडेंट देन टाइम मैनेजमेंट का तो आपको पता ही होगा, दैट इज 8 to 5 आपकी क्लासेस होती हैं। इफ यू आर इन मेड स्कूल या फिर इफ यू आर इन नर्सिंग स्कूल, तो 8 to 5 तो आपकी क्लासेस होती हैं। आई डोंट नो अबाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड आई डोंट नो अबाउट देम, बट आई एम श्योर दैट उनकी भी क्लासेस इसी टाइम पे होती होंगी, बिकॉज कॉलेज की तो पता ही है ऑब्वियसली। तो आपकी भी क्लासेस 8 to 5 या 9 to 5 मान लेते हैं कि आपके वर्किंग आवर्स है। तो वर्किंग आवर्स में क्या करना है, वर्क मतलब जो भी आपका काम है वो कर लिया। अब क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं, अब आफ्टर 5 हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा थक गए हैं और हमने ऐसा किया कुछ नहीं होता। ऐसा अगर मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स की भी बात करूँ तो नर्सिंग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लिनिकल्स जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, बट क्लिनिकल्स में जाकर उन्होंने जितना सीखा, क्लासेस में जाकर उन्होंने सीखा जितना सीखा, बट ऐसा नहीं होता कि आप 99% समय तक सीख रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 to 60% आप वहाँ पे सीख रहे होते हो और बाकी समय आपका वेस्ट ही हो रहा होता है। ऐसा कि मतलब 30-40% आप वेस्ट ही कर देते हो वहाँ पर। ऐसा मतलब क्लिनिकल्स में भी आपको थोड़ी देर सीखोगे फिर आप इधर उधर घूमने लग जाओगे, कोई काम नहीं होता तो आप बैठ जाते हो। ऐसा मैंने जितना देखा है मैं ये बता रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हो उस वक्त, अब आपने ये तो चीज कर ली, अब आप 5 बजे के बाद आके क्या सोचते हो कि हाँ मैंने तो काम कर लिया बहुत ज्यादा, मुझे आराम की जरूरत है। तो इट इज मतलब अच्छी चीज है, आराम करना इज अ गुड थिंग, बट बेसिकली अगर हम बात करें तो 5 to 9 या 8 का जो समय होता है वो हम वेस्ट करते हैं अपना शाम का। बिकॉज ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे शाम होती जाती है हमारी एनर्जी लो होती जाती है, ऑब्वियसली मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, तो हमारी स्लीप साइकिल मतलब स्लीप की तरफ हम जाने लग जाते हैं। तो जितनी एनर्जी बची हुई है दिन तक की उतनी तो हम लगा सकते हैं ना। तो शाम को भी हमें ऐसा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम को मैनेज करना चाहिए। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट या फिर एक मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर अगर आप कोई भी टाइप के स्टूडेंट हो जिसमें आपको मतलब सुबह आपको क्लासेस जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, या फिर आप जो भी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो 9 to 5, तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो क्लासेस तो करनी है, साथ में आपको कुछ 1-2 घंटे रखने डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज ऐसा क्या होता है ना कि हम एक ही टाइप का जॉब कर रहे हैं, एक ही टाइप का कॉलेज कर रहे हैं। आई डोंट नो कि कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव मतलब मेरे अंदर ये है कि मुझे ग्रो करना है लाइफ में। तो 2 घंटे भी अगर हम अपने ग्रोथ के लिए दे दें, दैट इज मोर देन इनफ। तो 2 घंटे या फिर 1 घंटे आप अगर अपनी ग्रोथ के लिए दे रहे हो, अगर कोई भी हॉबी अच्छी सीख सकते हो तो आप सीख सकते हो। जैसे आप कोडिंग सीख सकते हो, इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें सीखने को, स्टॉक मार्केट के बारे में जान लो, एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें डेवलप करने के लिए। इफ यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट स्पेशली, बिकॉज वी नो दैट कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को या नर्सेस को इतना ज्यादा नहीं मिलता रिकॉग्निशन इन आवर कंट्री। आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या एक रेस्पेक्टेबल जॉब है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब रेस्पेक्टेबल नहीं होती। हमने कितना काम किया अपने ऊपर, हम रेस्पेक्ट के काबिल होते हैं, जॉब नहीं होती। अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जॉब को लोग सही नहीं समझेंगे। सो दैट्स व्हाई
मतलब मैं सजेस्ट करती हूँ कि इफ यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट, स्पेशली इफ यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट, देन यू हैव टू लर्न द न्यू स्किल्स, ताकि कभी आगे जाके ये ना रहे कि आपके पास सिर्फ एक ही स्किल है, आपके पास मल्टीपल स्किल्स है। कोई ये ना कह सके कि आपने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं मिला, इस वजह से आप इस फील्ड में आए। आप ये कह सकते हो सामने से कि मैंने ये चीजें भी करी है। अब आफ्टर द 9 to 5 वाला सेशन, यू हैव टू 2 घंटे का आपको टाइम ब्लॉकिंग सेशन रखना है। 2 घंटे का, मान लो अगर 9 to 5 आ गया, थोड़ा फ्रेशन अप हो गए एंड चेंज वगैरह कर लिया, मान लो करते करते 5:30-6 बज गए, तो 6 से 7 एंड 7 से 8 2 घंटे का आपको टाइम ब्लॉकिंग रखना है। व्हाट इज टाइम ब्लॉकिंग? टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज पर लगे रहना। किसी भी मतलब टाइम चला दिया है 2 घंटे का, उसमें मैं बिल्कुल फोकस के साथ करते रहेंगे। उसके बाद कोई काम करना है तो करेंगे, कोई डिस्टर्ब कर रहा है बिल्कुल नहीं सुनना, बिल्कुल 2 घंटे टाइम। हम जब काम से आते हैं ना, तो हमारे अंदर वो वाली एनर्जी होती है, अगर हम उसको वेस्ट कर देंगे आराम करके तो फिर वो मन नहीं करता काम। पोमोडोरो टेक्निक, तो पोमोडोरो टेक्निक बहुत ज्यादा टाइम ब्लॉकिंग टोटली डिफरेंट थिंग है। टाइम ब्लॉकिंग अगर आप कर रहे हो 2 घंटे की, तो आपको बिल्कुल फोकस से काम करना है। लेकिन अगर आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर रहे हो, तो 25 मिनट्स काम करके आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। आप साथ में पोमोडोरो वाली वीडियोस वगैरह चला सकते हो, टाइमर चला सकते हो। अगर आप पढ़ रहे हो स्पेशली, तो आप यूज कर सकते हो। एज सच मेरे लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, बट आपके लिए इफेक्टिव। नेक्स्ट इज ईट दैट फ्रॉग। व्हाट इज ईट दैट फ्रॉग? स्टार्ट योर डे विद द हार्ड। जिम जाने को है, जिम जाना सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि जब हम काम से आते हैं हम फिजिकली बहुत ज्यादा थक जाते हैं। मेंटल काम तो कर सकते हैं, फिजिकली नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सुबह जिम जाती हूँ। हार्डेस्ट टास्क सबसे पहले करो सुबह उठ के, दैट इज द ईट दैट। तो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो कि आप कर सकते हो, जितना मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग योर स्पेस, तो अगर आप एज अ स्टूडेंट देखा जाए तो आपको पढ़ने का मन तभी करता है जब आपका स्पेस बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है, जब आपका टेबल बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है। तो अपने स्पेस को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, भले कितनी भी चीज हो, अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखो, मतलब चीजों को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रखो। अगर आप ऑर्गेनाइज रखोगे तो आपका काम करने का अपने आप मन है। ऐसा ही सेम चीज होती है हमारे फोल्डर्स के साथ, हमारी फाइल्स के साथ, जो कि हमारे फोन या टैबलेट्स या कंप्यूटर्स में होते हैं। हम क्या करते हैं, हम चीजें भरते जाते हैं, मेमोरी भरते जाते हैं। इससे क्या होता है, हमें काम की चीजें टाइम पे नहीं मिलती और फिर हमारा काम करने का मन नहीं करता। इसलिए अपने स्पेसेस, अपने फोन के स्पेसेस, अपने फाइल्स वगैरह को बहुत ऑर्गेनाइज रखो। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उसको अलग अलग फाइल्स में डालिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। रिव्यू एंड एडजस्ट। सो इफ अगर आप किसी पेशेंट को केयर दे रहे हो, तो आप इवेलुएट भी तो करते हो कि उस पेशेंट का मतलब आफ्टर ऑल द इंटरवेंशंस कुछ असर पड़ा या नहीं। दिस मेथड इज सेम एज दैट, कि इवेलुएट करना है हमें कि हमने जो प्लानिंग करी। संडे को आप क्या करो, संडे को आप सोचो कि हाँ, इस हफ्ते मैंने जो जो चीजें करी, क्या चीज सही गई, क्या चीज गलत गई, वो चीज आप लिख सकते हो अपनी डायरी में। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा डायरीज है। मेरे पास बहुत सारी, मेरे पास हर चीज के लिए डायरी है। कंटेंट प्लानिंग के लिए अलग डायरी है, डेली प्लानिंग के लिए अलग डायरी, ट्रैवलिंग वगैरह एज अ पैशन इन ट्रैवलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। सो उसके लिए अलग डायरी, एंड सेल्फ थॉट्स वगैरह को लिखने के लिए अलग डायरी। सो प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि टैबलेट वगैरह या फोन्स की प्लानिंग में बिलीव नहीं करता। मैं अभी भी डायरी ही लिखती हूँ। अभी मेरी डायरी यहाँ पे बेड पे पड़ी हुई है, प्लानिंग वाली। सो बेसिकली प्लान योर, तो इवैल्यूएट करो कि what went right and what went wrong। क्या चीज सही हुई, क्या चीज गलत हुई, क्या चीजें मुझे और सुधारनी है अपने आप में। एंड ये सारी चीजें हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। इट टेक्स हार्डली 2 to 3 minutes to evaluate। If you want to take control of your life, reduce your stress and feel more confident every day, then planning and organization is very important for you. So be patient, trust the process, and thanks for watching this video. Hit the like button and subscribe for more productive and lifestyle related content, and comment below what's the main planning habit that changed your life. Let's learn together.